Hello students, so today we will start the next chapter, the chapter number 7, system of particle and rotational motion. So before this chapter we have discussed chapter number 3 where we also discussed the motion of the particle, but in that case the particle are considered as a point object, but in that case there is a system of particle, means there is more than one point object. Clear? So first there is given system of particle. So what is the meaning of system of particle? So system of particle means collection of large number of particle interacting with each other. That is said to be system of particle. Clear? So as there are more than one particle, or we say that there are the real objects, means any stone, any other object. So that object is made up of large number of particles, and collection of that particle is called system of particle. And as we know that there is a large number of particles, so these particles also interact with each other. They exert force on each other. They have an internal force between them. So the collection of these type of particle forms the system of particle. And for example, if we will take it, a stone, a ball, the earth, the sun, a molecule are the system of particles. So before going to the system of particle, or before going to the next part, first we have to discuss about that. If there are more than one particle, or there is a large number of particles, or when we exert a force on these particles, and due to that these particles may be deformed, means shape of a body deforms. So when the shape of a body is deformed, it is very complicated to tell about the motion of that object. So before going to next, first we have to discuss here the rigid bodies. So rigid body, every body which is made of a large number of particles, that is a body. So what is rigid body? A rigid body means that in which the distance between any two constant particles remain fixed under the application of external force. For example, if we take a body, this is a body, there is two particles, one is and another this. If they are separated by distance r, and we apply a force on that body, due to that force, again this body start moving. And due to that force, if there is no change between, if this point is A, another is B, this is A, this is B. Previously the distance between these particles is R, next is again R. So this type of body is said to be rigid body. Means ऐसी कोई बॉडी जिनके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट इज सेड टू बी द रिजिड बॉडी. तो उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं. So now in this chapter we have to discuss about the motion of rigid body. क्लियर? तो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल का तो मतलब आपको पता लग गया होगा कि कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल मींस बॉडीज के बारे में बात करनी है. लेकिन बॉडीज कौन सी हमने बात करनी है, दैट इज रिजिड बॉडी के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है. तो फर्स्ट ऑफ है मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी. तो अ रिजिड बॉडी हैज टू टाइप ऑफ मोशन, वन इज ट्रांसलेशन मोशन, अदर इज रोटेशनल मोशन. अब पहले हम डिस्कस करें ट्रांसलेशन मोशन क्या है. अ रिजिड बॉडी दैट हैज ट्रांसलेशन मोशन इफ it move in horizontal surface in a such a way that every particle of the rigid body has same value. For example, if we take an inclined plane and this is any rigid body, if that a body is sliding downward, this body is said to be in the translatory motion if all the particles of this body having the same speed. Clear? तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. सिमिलरली अगर मैं थोड़ा आगे इसको एग्जांपल और लेता हूं, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, circular object, it is moving. So if the every particle of this object having same velocity or same speed, so that motion of the body is said to be translatory motion. Translation motion उसको बोलेंगे. नेक्स्ट हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन. तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है. A rigid body has rotational motion if it rotate about a fixed axis. कि मींस एक को किसी फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करे सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. कि फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये बॉडी इसके चारों तरफ घूम रही है दिस. सो दिस बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड दिस फिक्स पॉइंट. क्लियर? एंड एवरी पार्टिकल मूव्स अराउंड दिस फिक्स पॉइंट विच इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे. तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन. So as we discussed earlier about the system of particle, means there is a large number of particle. So these large number of particle, तो इन large number of particle के लिए हम एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं जहां पे मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो क्या है मास कंसेंट्रेट करेगा. द मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल और एक्सटेंडेड बॉडी इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. दिस इज बिकॉज एवरी पार्टिकुलर सिस्टम
moves in different manner than the other particles of the system. Therefore, to describe the overall motion of a body or a system of particle in simple manner, we replace the system of particle by a single point where whole the mass of the body supposed to be concentrated. तो हमने क्या कहा कि किसी भी जो रिजिड बॉडी है उसके पास बहुत सारे पार्टिकल हैं और बहुत सारे पार्टिकल के बीच में डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज हैं। अब जब उनके ऊपर कोई फोर्स लगेगा तो उनमें चेंजेस आएंगे, तो उन चेंजेस के साथ मोशन को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या क्या देते हैं कि हम कोई एक पॉइंट उठा लेते हैं, हम कहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर उस सारी बॉडी का मास क्या करता है, कंसेंट्रेट करता है, जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास मींस नेक्स्ट टॉपिक आपका, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर होल द मास ऑफ सिस्टम वर सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कोई बॉडी ले लेता हूं, सपोज दैट कि ये कोई आपकी बॉडी है, तो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक दिस। क्लियर, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। हम क्या कह देते हैं कि एक इस बॉडी के विदिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस बॉडी के सभी पार्टिकल का मास क्या करता है, कंसेंट्रेट करता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये सेंटर, तो इस बॉडी को हम कह देंगे सेंटर ऑफ मास। क्लियर, दिस पॉइंट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास आपका क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे सारी बॉडी का होल वेयर द होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम वर सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, कि जहां पे सारे सिस्टम का मास क्या करेगा, कंसेंट्रेट करेगा। क्लियर, इफ सेम नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट एट दिस पॉइंट लाइक द मास। अब अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करता है तो हम मानेंगे कि दैट फोर्स एक्ट इन होल द सिस्टम, मींस पूरे सिस्टम का मास इस पॉइंट पे कंसेंट्रेट करेगा। क्लियर, तो अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगा बाहर से एफ, तो वी कंसीडर इट विल एक्ट ऑन द होल बॉडी, मींस पूरे सिस्टम पे एक्ट करेगा। तो ये छोटी सी डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, वो पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का मास हम क्या करते हैं, सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। ये आपने बहुत बार देखा होगा कि 2-3 प्रोग्राम आते हैं नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे, तो उसमें आप देखते हो कि उसका सेंटर मास इधर हो गया तो वो गिर गया। मीन सेंटर मास प्ले अ ग्रेटर रोल इन द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, की रिजिड बॉडी के मोशन के अंदर या जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन के अंदर सेंटर ऑफ मास का बहुत बड़ा रोल है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, उसके अंदर डिस्कस करना है कि 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, और सेंटर ऑफ मास के लिए पॉइंट हमने डिस्कस करना है, और सेंटर ऑफ मास क्या होता है और उसके लिए क्या कंडीशन है। तो नेक्स्ट आपका है सेंटर ऑफ मास फॉर अ पॉइंट फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम, कि कोई सिस्टम है पार्टिकल, इसके अंदर क्या है, 2 पॉइंट है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल ए एंड बी। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल और ये आपका क्या है, बी पार्टिकल है। हैविंग मास m1 एंड m2, कि जो पहला पार्टिकल है उसका मास m1 है और जो बी है उसका मास क्या m2 है। एंड r1 एंड r2 आर देयर पोजीशन वेक्टर, कि जो r1 और r2 इसके क्या पोजीशन वेक्टर है। क्लियर, so if we want to find the displacement, we want to write their velocity. So if we say that कि particle A is moving with velocity v1 and particle B is moving with velocity v2, so the velocity of particle v1 can be written as dr1 upon में dt, कि जो ये आपका दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्लियर, तो जो पोजीशन वेक्टर, अगर आपको पोजीशन वेक्टर पता है, अगर उसके नीचे हम टाइम लगा देते हैं तो वेलोसिटी बन जाती है, कि मान लो ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया और ये यहां से यहां पहुंच गया, तो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। तो इफ यू वांट टू फाइंड अदर, कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आपके पास x है तो हम क्या कर देते हैं, dx अपॉन dt। तो जो dx अपॉन dt है ये बन जाती है वेलोसिटी। तो जब इसको हम 2 बार डेरिवेटिव कर देते हैं तो ये बन जाती है आपकी एक्सेलरेशन। जो पहला है उसका हमने ये लिख दिया 1। क्लियर, सिमिलरली जो v2 होगा वो आपका क्या होगा, dr2 अपॉन में dt। क्लियर, सो ये इनकी वेलोसिटी है, बी देयर वेलोसिटी एंड f1 एंड f2 बी दी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। हमने क्या कह दिया कि इस a के ऊपर भार से f1 फोर्स एक्ट कर रहा है और b के ऊपर भार से f2 फोर्स एक्ट कर रहा है। एंड इफ देयर इज अ 2 पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल हैं, दे आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो जो f1 और f2 है ये आपके एक्सटर्नल है, सो देयर एग्जिस्ट अ इंटरनल फोर्स आल्सो। वो इंटरनल फोर्स कौन सा है, f12 एंड f21, कि जो f12 और f21 है जो हमने लिखे हुए हैं ये फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं ये। तो जो यहां पे हमने लिखा है कि f12 जो है आपका f12 means force act on particle 1 due to particle 2, means force act on A due to B, that is written by F12. Similarly, there is also another force which is F21. This is the force act on B due to 1. अब हम यहां पे देखते हैं, दोनों हमने फोर्स की डायरेक्शन लगा रखी है कि ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये पार्टिकल इसको यहां खींच रहा है। तो ड्यू टू दैट देयर इज अ फोर्स बिटवीन दीज 2 पार्टिकल एंड दिस फोर्स वी ऑब्जर्व दैट कि these 2 फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मींस ये जो दोनों फोर्स हैं वो इक्वल इन क्या है, मैग्नीट्यूड है, और अपोजिट किसमें, डायरेक्शन में।
तो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आपका आएगा F12 प्लस F21, तो वो आपका 0 आ जाएगा। ये कौन सा फोर्स था? ये था आपका इंटरनल फोर्स, मींस जो फोर्स इन दो पार्टिकल के बीच में है दैट इज इंटरनल फोर्स। तो जो नेट इंटरनल फोर्स है वो आपका क्या है? 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल फोर्स की बात करता हूं, जो टोटल फोर्स आपका होगा जिसको हम लिखते हैं कि F, तो F अगर आपका टोटल फोर्स है, इस पॉइंट के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक F12 और एक यहाँ पे F है, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स होगा वो आपका आ जाएगा F1 प्लस F12। सिमिलरली प्लस जिस पॉइंट बी के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट करें, तो यहाँ पे F2 एक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे F21 एक्ट कर रहा है, तो इसमें लिख दिया मैंने F2 प्लस F21। सो दिस इज द टोटल फोर्स विच एक्ट ऑन दिस सिस्टम, कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F1 प्लस 2, F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस 2F1, ये टोटल फोर्स आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो वी ऑल नो दैट कि जो ये दोनों फोर्स है F12 और F21, इसकी वैल्यू तो 0 है, तो जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या रहेगा आपके पास? F1 प्लस F2 फोर्स आपके पास रहेगा। तो दिस इज द नेट फोर्स। अब इसके बाद हमें अगले नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, हम यहाँ पे चलेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से, कि जो बॉडी ए थी उसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट करे थे? बॉडी ए के ऊपर एक तो आपका F1 एक्ट करा, दूसरा एक्ट करा था F12। तो ये बॉडी ए के ऊपर फोर्स आपके एक्ट कर रहे थे। तो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, या इक्वल टू फोर्स, कि हमें बताया गया था कि जो डीपी अपॉन dt होगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो F के इक्वल होगा। इसके ऊपर फोर्स क्या एक्ट करे? F1 और F2, अगर उसकी वजह से बॉडी में क्या है? मोमेंटम में चेंज आएगा। तो अगर जो आपका बॉडी है तो हम लिख देते हैं dp अपॉन dt, और यहाँ पे लिख दिया मैंने p। अब p क्या है? बॉडी ए की मोमेंटम। अब बॉडी ए का मास क्या था? m1 था, और उसकी वेलोसिटी क्या थी? v1 थी। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आपकी यहां से आ गई d बाई dt, और यहाँ पे आपका आ गया m1 v1। सिमिलरली जो फोर्स एक्ट करेगा दूसरी बॉडी के ऊपर, तो ये आपका ये होगा, और इसकी वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? d बाई dt, और यहाँ पे आपका आ जाएगा m2 v2। तो ये हमने यहां से नोट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, आफ्टर दैट, कि वी हैव टू फाइंड द टोटल फोर्स, कि टोटल फोर्स क्या होगा आपका। तो जो आपका टोटल फोर्स अगर मैं यहां से लिखता हूं तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं हम, तो जो टोटल फोर्स आपका होगा वो आएगा F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21 इज इक्वल टू d बाई डी टी, यहां पे आ जाएगा m1 v1 प्लस d बाई डी टी, यहां पे आ जाएगा m2 v2 आ जाएगा। सो एज वी नो दैट, कि हमें पीछे लिख के आए थे कि भाई जो ये दोनों फोर्स हैं ये तो 0 हो गए, और ये आपका क्या F12 है, और वो किसके इक्वल है? आपका F के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे इस F12 की जगह लिख दिया F लिख दिया, ये 0 हो गया, ये वैल्यू 0 होगी आपकी, और ये F1 प्लस F2 किसके? F के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया F। अब इसके बाद जब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे m1 था उसको बाहर लिख लिया और अंदर लिख दिया dv1 बाई dt। फिर हमने यहाँ पे क्या m2 को बाहर लिख दिया, और क्योंकि मास बेटा कभी भी चेंज नहीं होता, मास तो कांस्टेंट है, तो चेंज किसी में आ रहा है? वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर ऊपर लिख के आए थे हम यहाँ पे कि जो v1 है और v2 की वैल्यू हम लिख के आए थे, व्हाट इज द वैल्यू v1 एंड v2 विच वी रिटन ऊपर। तो v1 क्या था आपका? दैट इज dr1 अपॉन में dt, इनकी पोजीशन वेक्टर थे, और v2 क्या था आपका? dr2 अपॉन में dt। क्लियर। सो आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 इन दिस। तो जब इसके अंदर v1 और v2 वैल्यू पुट, यहाँ पे आ गया m1, और यहाँ पे आपका आ गया d बाई dt, और अंदर हमने पुट कर दिया यहाँ पे dr1 अपॉन में dt प्लस m2 एस टी रह गया, अंदर हमने लिख दिया d बाई dt, और यहाँ पे आपका आ गया dr2 अपॉन में dt। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो जब इसको हम अंदर लेके जाएंगे, क्लियर, व्हेन इट इज मूव इनसाइड, तो ये बन जाएगा बेटा आपका, दिस बिकम m1, और ये बन जाएगा आपका d स्केयर r1 अपॉन में dt स्केयर प्लस m2 d स्केयर r2 अपॉन में dt स्केयर। तो ये बन गया आपका। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, अंदर से d स्केयर की टर्म को उठा के बाहर लिख लिया, तो d स्केयर अपॉन में dt स्केयर को हमने बाहर लिखा, तो अंदर आपके पास जो वैल्यू आई उसको हम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो वो आएगा m1 r1 प्लस m2 r2, ये आ गया अपने पास। क्लियर। और इधर आपका चल रहा है f। क्लियर। तो अगले स्टेप में अगर हम इसके बाद चलते हैं तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया दोनों साइड। हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किसके साथ? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड विद m1 प्लस m2। ठीक है। तो अब अगले स्टेप में हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड की जो टर्म आई थी अपने पास, वहां पे क्या किया, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर।
और डी स्केयर बाय डी टी इसको यहां लिखा, और इसी से हमने क्या कर दिया, ये कर दिया हमने m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर। इसके बाद अगर हम ये कह देते हैं कि मैं फिर से डायग्राम के ऊपर लेके जाता हूं, हमने क्या कहा कि सपोज दैट कि जो पूरी बॉडी है इसका जो मास है आपका वो इस कहीं बीच में आ जाता है जिसको हम सेंट्रोमास कहते हैं, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आरसीएम है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो हमने पीछे कैपिटल एफ लिखा है उस कैपिटल एफ की मैंने वैल्यू पुट करनी है। तो अब अगर हम कह देते हैं कि इसका जो पूरे सिस्टम का मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, दो बॉडी है, तो जो f आपका होगा उसको हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू ma। अब जो ये m है आपका, इसकी वैल्यू आपकी है m1 प्लस m2, और जो ये एक्सेलेरेशन मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ पूरे सिस्टम की। अब पूरे सिस्टम का मास कहां पे कंसेंट्रेटेड मानते हैं, सेंट्रो मास के ऊपर कंसेंट्रेटेड मानते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं यहां से, तो ये आपका आ जाएगा a यहां पे। तो जो a की वैल्यू होगी, हम यहां पे लिख के आए थे कि अगर आपको r पता है, अगर आपको एक बार r का डेरिवेटिव करते हो dr बाई dt, ये होती है वेलोसिटी। तो अगर आप दोबारा से वेलोसिटी का डेरिवेटिव डी स्केयर r बाई dt स्केयर जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे m1 प्लस m2 ऐसे रखेंगे, यहां पे जो a की वैल्यू हम लिख देंगे इन दी फॉर्म ऑफ r। अब जो ये r है आपका बन जाएगा आपका डी स्केयर r सी एम अपॉन में डी टी स्केयर। मीन्स हमने क्या किया कि सपोज दैट इन दिस केस वी से दैट कि देयर इज अ टू सिस्टम पार्टिकल, यहां पे दो पार्टिकल थे ए और बी। हमने क्या कहा, इस ए और बी पार्टिकल का जो मास है इस सी पॉइंट के ऊपर कंसेंट्रेट करता है, और इस सी पॉइंट का जो क्या है पोजीशन वेक्टर है वो आरसीएम है, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रो मास। क्लियर। अब इस पार्टिकल सी के ऊपर मास कर दो, उसकी वैल्यू है m1 प्लस m2। तो इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स रहेगा उसको लिखेंगे F इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे हम। तो एम ए की जगह तो क्या आ गया आपका r1 प्लस r2 आ गया। अब जो ए है वो थी एक्सेलरेशन। तो अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता है, क्या पता है हमें पोजीशन वेक्टर, अगर हम पोजीशन वेक्टर पता है, अगर पोजीशन वेक्टर को हम एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं मतलब टी के टाइम के साथ में, तो बनती है वेलोसिटी। जब दो बार कर देते हैं तो क्या बन जाती है वो एक्सेलरेशन। तो अब जो एक्सेलरेशन आपकी आई है यहां से, इसके बाद मैं दोबारा से आपको लेके चलता हूं उसी पॉइंट के ऊपर। तो हमने क्या करना है, जो आपका ये एफ था, अब ये एफ की वैल्यू जो मैंने निकाली है ये हमने लिखनी है यहाँ पे क्या वैल्यू है, वो है m1 प्लस m2 इंटू में डी स्केयर आर सी एम अपॉन में डी टी स्केयर इज इक्वल टू, यहां पे आपका आया था m1 प्लस m2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, और अंदर था आपका वो था डी स्केयर अपॉन में डी टी स्केयर, और यहां पे वैल्यू थी आपकी m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपकी वैल्यू थी यहां पे। तो अब जब हम दोनों कंपेयर करेंगे तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया भाई, डी स्केयर से ये डी टी स्केयर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आर सी एम बचा, मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रो मास, दिस इज आर सी एम। क्लियर। अब इसकी जो वैल्यू आई आर सी एम की, दिस आर सी एम कम्स आउट टू बी, तो हियर द पॉइंट हैव पोजीशन वेक्टर आर सी एम की, जो आर सी एम पोजिशन वेक्टर है उसकी जो वैल्यू आई है वो आपकी आ गई m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो जो ये r है, ये r है आपका पोजीशन वेक्टर सेंट्रो मास। ये तो दो सिस्टम पार्टिकल था। इफ देर आर n सिस्टम, अगर यहां पे n सिस्टम होंगे, तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं RCM ऑफ n सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो भाई अगर m होंगे तो यहां पे क्या है m1r1 प्लस m2r2 अप टू कहां तक, सोन कहां तक mnrn डिवाइड बाय नीचे क्या होगा m1 प्लस m2 कहां तक, अप टू mn तक। तो अगर इसको मैं सिंपल वे में लिखना चाहता हूं तो इसको अगर मैं लिखेंगे तो इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको अगर समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो समेशन आपका क्या होगा, इफ देर आर n पार्टिकल इज देयर। तो अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो समेशन मतलब जोड़ के लिखना चाहते हैं, तो समेशन की फॉर्म में जो आएगा आपका, तो उसको लिख देंगे हम समेशन i अप्रोचेस 1 to n, यहां पे आ जाएगा mi ri डिवाइड बाय समेशन i अप्रोचेस 1 to n mi। ये क्या है RCM मींस सेंटर ऑफ मास, मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल। अब हमने क्या करना है, हम बारी बारी से i की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो पहले 1 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या गया m1r1, फिर 2 पुट करेंगे प्लस m2r2 प्लस m, ये समेशन होता है, सबको सम करना है हमने। तो अगर शॉर्ट में आपको लिखें कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको याद रखना है। अगर 3 पार्टिकल है तो क्या होगा, 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये तो दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल थे। अगर n होंगे तो ये अप टू कहां तक जाएगा, n तक आगे जाएगा। अगर नीचे भी n तक जाएगा तो उसको शॉर्ट में हम ये लिख देंगे। तो ये था आपका समेशन वाला। तो ये था आपका
पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास और टू पार्टिकल सिस्टम, कि टू पार्टिकल सिस्टम और सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो उसको आप बता दोगे ताकि हम नेक्स्ट इसको डिस्कस कर सकें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब जो नेक्स्ट आपका वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी डिपेंड ऑन द शेप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। हमें पता है कि जो रिजिड बॉडी है उसके ऊपर जब फोर्स लगेगा और उसकी शेप में चेंज आएगा तो मे बी ड्यू टू दैट देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन और ऑफ द पार्टिकल्स। तो कंसीडर रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल है, हमने क्या मान लिया कि कोई रिजिड बॉडी है जिसका मास क्या कैपिटल एम है। इफ द रिजिड बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, अगर रिजिड बॉडी किससे बनी है, डिस्क्रीट पार्टिकल से। हमने क्या कहा, फॉर एग्जांपल ये कोई रिजिड बॉडी है, क्लियर, रिजिड बॉडी का जो मास है वो कैपिटल एम हमने मान लिया। दिस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो इफ वी से दैट इफ देयर इज एन पार्टिकल, तो अगर हमने यहाँ पे एन पार्टिकल है तो अभी थोड़ी देर पहले लिख के आया था, इफ वी वांट टू राइट द पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास फॉर द एन पार्टिकल्स, तो मैंने कहा था अगर मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे क्या है आपका m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस, अगर मैं 100 यहाँ पे लिख देते हैं mn rn आएगा, डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू कहां तक, प्लस mn तक आएगा। अब ये तो बहुत सारे पार्टिकल हमने सबको जोड़ दिया। तो इफ यू वांट टू राइट इन शॉर्ट, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम, तो यू वांट टू राइट इन शॉर्ट, वी राइट इन समेशन फॉर्म। तो समेशन आई अप्रोचेस 1 to n, मींस हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे mi ri। अब ये आई का मतलब क्या है कि आई को 1 पुट करोगे तो m1 r1, फिर 2 पुट करोगे m2 r2, और समेशन मतलब सबको जोड़ना है। दिस इज डिवाइड बाय समेशन आई अप्रोचेस 1 to n, और यहाँ पे आएगा आपका mi। क्लियर। अब यहाँ पे लिखते हैं अगर हम यहाँ पे कि अगर मैं इन सभी पार्टिकल के, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं, तो ये लिखा मैंने समेशन एम आई और ये लिख दिया एम आई यहाँ पे ऐसे करके। तो अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू कहां तक जाएगा, mn तक जाएगा। तो मीन्स हमने सभी पार्टिकल को जोड़ दिया। अगर मैं सभी पार्टिकल को जोड़ देता हूं इसका मतलब पूरी बॉडी आ जाएगी। अगर पूरी बॉडी, तो पूरी बॉडी का मास क्या था, कैपिटल एम था। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1/m, क्लियर, समेशन आई अप्रोचेस 1 to n, यहां पे आ जाएगा आपका mi ri, क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सबने सुनना है ध्यान से। इन केस ऑफ रिजिड बॉडी वी हैव कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट रिजिड बॉडी आर नॉट सेपरेटेबल। अब ये कहता है पार्टिकल इतने दूर, इतने क्लोज हैं कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, जब पार्टिकल हम सेपरेट नहीं कर सकते तो वी कंसीडर दैट पार्टिकल एज अ एलिमेंट। अब एलिमेंट और पार्टिकल में क्या फर्क है कि इफ एलिमेंट का मतलब है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, वो बन गया एलिमेंट। अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे जितने पार्टिकल सबको इकट्ठा कर लिया, एलिमेंट बन गया भाई एक, यहाँ पे कुछ बन गया। तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तो एलिमेंट आपका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। और जब कोई बॉडी रिजिड हो जाती है तो उसके पार्टिकल बेटा बहुत क्लोज होते हैं, तो उन पार्टिकल को हम पार्टिकल ना मान के क्या मानेंगे, उनको हम एलिमेंट मानेंगे। तो वी कंसीडर दैट रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ एलिमेंट इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। द मास ऑफ द ईच एलिमेंट इज डीएम। तो हमने क्या माना कि हर एक एलिमेंट का मास क्या है, डीएम है। तो ये भी डीएम है, ये भी डीएम है। तो इन दैट वे देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट एलिमेंट्स। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, सबने ध्यान से देखना उसको। तो इफ वी हैव अ मास ऑफ वन एलिमेंट, इफ वी वांट टू फाइंड द मास ऑफ होल बॉडी, वी विल इंटीग्रेट इट। इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, सबने ध्यान से देखना है कि जो समेशन आपका था आई अप्रोचेस 1 to n mi ri कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू में r, क्लियर। मीन्स जब हम क्या करेंगे, पार्टिकल ना रह के क्या बन जाते हैं, वो एलिमेंट बन जाएंगे। तो जो ये है वो ऐसे लिखा जाएगा। सिमिलरली जो आपका क्या था, दैट इज समेशन आपका जो था आई अप्रोचेस 1 to n, और ये जो एम आई था वो बन जाएगा डीएम। अब जो आरसीएम था आपका, मीन्स पोजीशन वेक्टर था जो सेंटर ऑफ मास का, वो आपका इस फॉर्म में ना रह के वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ऑफ इंटू में डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये आपका बन जाएगा अभी। अब हमें पता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई लेता हूं कि ये कोई 3D में ये पॉइंट यहाँ पे है, ये सारा रिजिड बॉडी थी,
तो इसका ये जो सेंटर ऑफ मास था इसका ये आरसीएम है। अब इस पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा एक्ससीएम मींस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जो वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा वाईसीएम मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। अब जो ये आरसीएम पोजीशन वेक्टर है इसको अगर मैं लिखना चाहता हूं, ये बन जाएगा आपका एक्ससीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप प्लस जेड सीएम के कैप बन जाएगा। मींस पोजीशन वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहता हूं यहां से। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ बोथ आर एंड द वैल्यू ऑफ आरसीएम। तो यहां पे जब मैं आरसीएम और आर की वैल्यू पुट करूंगा तो इन प्लेस ऑफ आरसीएम हमने यहां पे क्या लिख देना है, दैट इज एक्ससीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप प्लस जेड सीएम के कैप। यहां पे इंटीग्रेशन है डीएम एज टीज रहेगा, और वी नो दैट कोई पोजीशन वेक्टर उसका होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। क्लियर। अब हम अगर इसको प्रोडक्ट करते हैं, अगर इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो जब इसको ओपन करके लिखना चाहेंगे और जब दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो जगह मैं लिखता हूं मैं एक्स सी एम आई कैप इज इक्वल टू, तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हम आई कैप वाले को आई कैप से कंपेयर करेंगे, तो जो यहां पे वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डिवाइड बाय डीएम, और यहां पे क्या आ गया आपका, दैट कम्स आउट टू बी एक्स आई कैप। ठीक है। अब जो आई कैप था, आई कैप से आई कैप कैंसिल हो जाएगा, तो जो एक्स सीएम होगा दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, दिस कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है। अब ये हमने एक्स का लिखा था, इफ यू वांट टू राइट इट इज फॉर वाई, तो यहां पे आ जाएगा डीएम वाई अपॉन में डीएम, सिमिलरली जेड। तो ये आ गया, इट इज इन दी फॉर्म ऑफ रिजिड बॉडी, कि जब आपका क्या होगा वो रिजिड बॉडी होगा। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा था, इसको देखना है एक बार फिर से, अगर फिर भी डाउट रहता है तो उसको हम नेक्स्ट टाइम में फिर से डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू सी द वीडियो अगेन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टूड इट। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, हमने सेंटर ऑफ मास की बात की, अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होता है और वो कैसे काम करता है। तो हमने फिर से क्या करना है, कंसीडर अ सिस्टम हैविंग एन पार्टिकल, हमारे पास क्या एन पार्टिकल है और सबका मास क्या है m1 m2 m3 अप टू mn होगा, और जो उनके पोजीशन वेक्टर है वो r1 r2 r3 है। तो इफ यू वांट टू फाइंड अगेन आरसीएम, तो जो आरसीएम मींस व्हाट इज आरसीएम हियर, आरसीएम इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको मैं लिखना चाहता हूं, यहां पे आपका आएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 इफ देयर इज n पार्टिकल, तो हियर कम्स आउट टू बी mn rn। तो बेटा इनके ऊपर वेक्टर लगा दिया करो, ये पोजीशन वेक्टर है इसलिए यहाँ पे वेक्टर लगाना जरूरी है। डिवाइड बाय नीचे का आएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू कहां तक प्लस mn। तो ये याद रखना, ये हमेशा क्या होता है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं इस नीचे वाली टर्म को उठा के इधर ले आ जाता हूं तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आर सी एम इंटू में m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू कहां तक प्लस mn, और उधर आपका क्या चल रहा है, उधर है आपका m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू सोन, ये लिख लेना हमने आगे तक। क्लियर। अब अगर मैं लिख देता हूं कि मैंने सभी पार्टिकल के मास को सम कर लिया, तो ये सभी पार्टिकल मास सम तो कहीं ना कहीं बॉडी बन गई है। तो अगर ये कोई बॉडी बन गई तो इसको मैं लिखता हूं, यहां लिख दूंगा आर सी एम इंटू में कैपिटल एम, लिख सकते हैं इसको हम। तो इधर आपका क्या चल रहा है, इधर आपका चल रहा है यहां पे क्या m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू सोन तक, n तक चल रहा है। तो ये आपका बन गया m r c m, और इधर हमने क्या लिखा है r1 r2 r3 लिखा हुआ है। तो अगर मैं दोनों साइड क्या करता डिफरेंशिएट करता, मतलब दोनों साइड मैंने dt से डिवाइड कर दिया, इधर भी dt आ गया, इधर क्या आ गया m1 r1, मींस हमने क्या किया डिफरेंशिएट बोथ रिस्पेक्ट कर दिया, तो ये d बाय ये भी d आ गया, और इधर मैं इसको लिख दिया यहाँ पे d बाय dt ऑफ ये पूरी टर्म का, यहाँ पे क्या आ गया m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। मैं सिर्फ ये 2-3 टर्म दिखा रहा हूं, बाकी टर्म आप खुद इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो। अब जब इसको मैं अंदर लेके जाऊंगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा m तो है ये बाहर, तो इधर आपका है d rcm अपॉन में dt, और इधर आपका आ जाएगा यहाँ पे m1 dr1 अपॉन dt, m2 dr2 अपॉन में dt प्लस m3 dr3 अपॉन में dt प्लस अप टू सोन।
अभी देखो ये डी आर अपॉन डी टी हम पीछे लिख के आए थे कि जो आपका डी आर अपॉन डी टी होता है वो v होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो ये बन जाएगी क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये बन जाएगा आपका एम वी सी एम, और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस अप टू कहां तक एम एन वी एन। मीन्स पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, दूसरे की वेलोसिटी, तीसरे की वेलोसिटी। अब जहां पे ये वी सी एम है, ये है बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपकी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये वेलोसिटी है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, हमने इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमने कहां पहुंचना है, हमने एक्सेलेरेशन तक पहुंचना है। तो जब हम एक्सेलेरेशन तक पहुंचेंगे, जो इसको एक बार लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा एम डी वी सी एम अपॉन में डी टी, और इधर आपका आ जाएगा एम वन डी वी वन अपॉन में डी टी प्लस ये आपका आ जाएगा आगे एम टू डी वी टू अपॉन में डी टी अप टू सोन, यहां पे आ जाएगा एम एन इंटू में वी डी वी एन अपॉन में डी टी। तो अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि जी डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी तो बन जाएगी एक्सेलेरेशन। तो ये आपका बन गया एम ए सी, ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा एम ए वन एम टू ए टू प्लस अप टू कहां तक एम एन ए एन। तो भाई ये किसी पहला पार्टिकल था, इसको मैं लिखता हूं एफ वन, क्योंकि एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स आ गया, तो ये वन है, तो ये बन गया एफ वन, और ये क्या बन गया एफ टू, और आगे क्या गया एफ थ्री, अप टू कहां तक जाएगा, ये आएगा एफ एन तक। ठीक है, अब जो ये एफ वन एफ टू एफ थ्री है सारे एक्सटर्नल फोर्स हैं जो किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, मास एम वन एम टू एम थ्री पे एक्ट कर रहे हैं। क्लियर, और ये सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स हैं, इसको मैं लिख दूंगा एफ लिख दूंगा पूरे को। तो जो आपका यहां से क्या आया, एम ए सी आया, एम सी एम ए सी एम बेटा सेंटर ऑफ मास, वो आपका आ गया एफ एक्सटर्नल के इक्वल। क्लियर, तो हमने यहां से क्या पॉइंट नोट किया, हमने यहां पे नोट किया कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव इफ होल ऑफ द मास ऑफ अ सिस्टम वर टू बी कंसंट्रेटेड एट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्स वर अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास। अब यहां पे पॉइंट हमने क्या नोट किया कि कोई भी सिस्टम है या वो तब मूव करेगा जब उसके सारा का सारा मास किसके ऊपर कंसंट्रेट करेगा, सेंटर ऑफ मास के ऊपर कंसंट्रेट करेगा। मींस द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल मूव, कि जो सेंटर ऑफ मास है किसी भी सिस्टम का वो तब मूव करेगा इफ द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड द एक्सटर्नल फोर्स वर अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास। तो ये पॉइंट हमने कहा, मोशन का मतलब यहां से हमने समझा कि हम यहां पे देखते हैं आखिरी में जो रिजल्ट आया कि जो एफ एक्सटर्नल है वो कहीं ना कहीं किस पे एक्ट कर रहा है, वो वहां पे लिख दिया हमने एम ए सी एम, मीन्स कैपिटल एम ए सी एम एफ एक्सटर्नल। तो जो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू वो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर आ रही है, और टोटल बॉडी का मास है। तो हमने यहां से नोट किया कि कोई बॉडी तभी मूव करेगी अगर उसका सारा मास किसके ऊपर एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट करता है, और जो एक्सटर्नल फोर्स आपका एक्ट करता है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट करना चाहिए, तभी आपकी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। तो वंस आई विल रिपीट इट अगेन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल मूव इफ होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम वर कंसंट्रेटेड एट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्स वर अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन थी मोशन के रिगार्डिंग। अब आपकी है नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तब तक तो हम लीनियर मोमेंटम हमने सिंपल बॉडी के बारे में पढ़ी थी, कोई बॉडी है उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है, ड्यू टू दैट फोर्स उसकी मोमेंटम होती है, मोमेंटम कंजर्व होगी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। बट नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस इट फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो अगेन व्हाट वी हैव टू कंसीडर, फिर से हम क्या लिखेंगे, एन पार्टिकल है, पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2, तीसरे का मास m3 अप टू कहां तक mn तक, और हर एक की वेलोसिटी क्या है v1 v2 v3 रिस्पेक्टिवली। तो अगर इनकी मैं मोमेंटम लिखना चाहता हूं तो मोमेंटम क्या होगी, तो यू कैन राइट इजिली कि जो मोमेंटम होगी पूरे सिस्टम की या पूरे पार्टिकल की, तो हमें पता है क्या होगा, दैट इज p। तो p जो सिस्टम किससे मिलकर बना, दैट इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, हर एक का अपना मास है, हर एक की अपनी वेलोसिटी है। तो जो सभी पार्टिकल की मोमेंटम की कंबाइन आएगा वो आएगा आपका क्या, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अप टू कहां तक, n तक जाएगा। क्लियर। अब फिर से अगर हम क्या कर देते हैं कि अगर मैं m1 m2 m3 सबको ऐड कर लेता हूं, तो अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो आपको पता ही है, तो टोटल मास आ जाएगा सबका। क्लियर।
और जो सबकी वेलोसिटी का जो सम आता है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास है, बिकॉज होल द मास ऑफ द बॉडी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द मास। तो जो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका एम वी सी एम, क्योंकि है बहुत सारे पार्टिकल थे, बट दीज द मास ऑफ दीज पार्टिकल सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जो मास है वो कैपिटल एम है, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी सी एम है। तो ये पी की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से। तो अगर यहाँ से पी की वैल्यू होती है, वी विल डिफरेंशिएट इट बोथ साइड। तो अगर हम दोनों साइड, तो बन जाएगा आपका डीपी अपॉन में डी, और इधर आपका क्या है, जो m कॉमन है, क्योंकि m तो डिफरेंशिएट करने को तो कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा वी सी एम अपॉन में डी टी। अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते तो कहीं ना कहीं क्या बन गया आपका, ये बन गया m इंटू में ए सी एम, मीन्स मास इंटू में एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्लियर। अब हमें पता है कि जो डीपी अपॉन डी टी है वो आपका किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो अगर हम यहां से देखते हैं कि जो m इंटू में ए सी एम है वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, दैट इज अ फोर्स। और विच फोर्स विच इज एक्ट ऑन द सिस्टम एक्सटर्नली। तो जो आपका m डॉट ए सी एम है ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, दैट इज एफ एक्सटर्नल। क्लियर। और कहीं ना कहीं जो एम ए सी एम की वैल्यू वो डीपी बाई डी टी के इक्वल भी है, और कहीं ना कहीं जो आपका एफ एक्सटर्नल आया है दैट इज डीपी अपॉन डी टी, और ये किसी ना किसके इक्वल है आपका एफ एक्सटर्नल के इक्वल। तो मैं यहां से लिख रहा हूं दैट इज एफ एक्सटर्नल। नहीं, जो डीपी अपॉन डी टी था वो आपका किसके था, वो एम ए सी एम के इक्वल था, और ए एम सी किसी एफ एक्सटर्नल के इक्वल है। अब यहां से आपकी आएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं क्या देता हूं कि जो एफ एक्सटर्नल है, अगर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, अगर बाहर से फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है, तो अगर बाहर से फोर्स जीरो लगेगा तो कहीं ना कहीं जो आपका एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम में जीरो। क्लियर। तो इसका मतलब ये आपका है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है तो कहीं ना कहीं जो आपका एम ए सी एम है वो आपका जीरो है, लेकिन जो आपका एम है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब ए सी एम आपका क्या है, जीरो आ गया। अगर ए सी एम जीरो है इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। एक्सेलेरेशन जीरो तभी होती है अगर आपकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और दूसरा अगर हम यहां से देखते हैं, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो आपका जो डीपी बाई डी टी है वो आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। मीन्स जो मोमेंटम है उसके अंदर चेंज वो जीरो है। अगर मोमेंटम के अंदर चेंज जीरो, इसका मतलब क्या है कि जो P1 और जो P2 की वैल्यू है वो बराबर है। तो अगर P1 और P2 की वैल्यू बराबर है इसका मतलब P1 इक्वल टू P2। अगर मैं चेंज निकालता हूं तो P2 माइनस P1 जो आपका आएगा वो आपका जीरो आ जाएगा। क्लियर। तो अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है इसका मतलब मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा। तो अगर मोमेंटम में चेंज नहीं है इसका मतलब जो P है आपका वो क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। और यही किसकी डेफिनेशन है, यही आपकी किसकी डेफिनेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। अब अगर इसको नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कि जो मैंने आपका वीसीएम की फॉर्म में लिखा था, तो मैंने वैसे आपको समझा दिया लेकिन दोबारा से बता देता हूं एक बार क्या है। हम लिख के आए थे क्या, हमने लिखा था कि जो आपका मोमेंटम है वो जीरो आ गई। तो अगर आपकी मोमेंटम जीरो है, क्लियर, इफ वी राइट हियर कि जो आपकी पी है, क्लियर, मीन्स चेंज इन मोमेंटम डीपी बाई डी टी वो आपका क्या था, जीरो था। अगर डीपी बाई डी टी जीरो है इसका मतलब अगर इसको मैं सेंटर मास की फॉर्म लिख सकता हूं तो डी बाई डी टी, और यहां पे आ जाएगा कैपिटल एम इंटू में वी सी एम, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो अब यहां से अगर मैं फिर से लिखता हूं कि मास तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब कौन जीरो है, जीरो कौन है, दैट इज डी वी सी एम अपॉन में डी टी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है क्या है, जीरो है। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज हो इसका मतलब जो वी सी एम है वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल है, दैट इज कॉन्स्टेंट, जो मैं आपको पूछे प्रूव कर दिया था मैंने यहां से कि जो एसीएम है वो एक्सेलेरेशन क्या आ गई, जीरो आ गई। मीन एक्सेलेरेशन सेंटर मास जीरो आ गई। एक्सेलेरेशन सेंटर मास तभी जीरो हो सकती है अगर क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास मान लो पहले 10 थी और बाद में भी क्या थी, 10 थी, तो अगर मैं निकालता हूं एक्सेलेरेशन सेंटर मास तो आप क्या लिखोगे, वी सी एम इनिशियल या फाइनल माइनस वी सी एम इनिशियल। तो अगर 10 में 10 गया तभी तो क्या है, वो जीरो है। तो ये था आपका टॉपिक acceleration of center of mass. So the center of mass of a system moves with constant velocity if external force act on the system is zero. और दूसरा कि कोई भी सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा अगर उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। फिर से किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मोमेंटम क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी या कांस्टेंट रहेगी जब तक बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन। अब सिर्फ चेंज क्या करना है,
द मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन कंजर्व्ड और रिमेन कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम। इन दिस टॉपिक वी विल प्रूव इट। तो ये इस चैप्टर की आपकी थी वीडियो नंबर 1। इसके बाद हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट वीडियो को डिस्कस करना है। अब एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, उसको मैं बता देता हूं कि हर एक बॉडी का सेंटर मास कहां कहां पे लाई करेगा। तो अगर कोई बेटा रोड है आपकी, मींस एनी यूनिफॉर्म रोड, तो उसका जो सेंटर मास एक्ट करेगा वो सेंटर पे एक्ट करेगा, लाइक दिस। ये सेंटर है इसका, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द रोड की, जो रोड का मिड पॉइंट है, अगर इसकी लेंथ मान लो आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट के ऊपर इसका सेंटर मास कंसंट्रेट करेगा। अगर कोई आपकी क्या है, कोई रिंग है, तो रिंग का किसके ऊपर, उसके सेंटर के ऊपर है। अगर कोई डिस्क है तो डिस्क का भी किसके ऊपर एक्ट करेगा। अब रिंग और डिस्क में क्या फर्क है, अब जो रिंग होगी अंदर से खाली होगी, डिस्क क्या होगी अंदर से भरी होगी, लाइक दिस। क्लियर। अब अगर आपका कोई क्यूबॉइड है, अब क्यूबॉइड का सेंटर मास या क्यूब का सेंटर मास कहां पे लाई करेगा, तो ये बेटा वहां पे लाई करेगा जहां पे इस क्यूब के सारे डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का सेंटर मास कहां पे, ये एक्चुअल में in your book it is given the derivation but it is not in the form of derivation, you have to just remind it or just you have to learn it। अब जो सेंटर मास किसका, किसी भी सिलेंडर का, वो कहां आएगा, सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, कि वो कहां पे होगा, ये जो एक्सिस होगी ये, क्लियर, इस यहां पे लाई करेगा। क्लियर। अब जो अगर कोई आपका सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के भी कहां पे लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा। अगर कोई आपकी ट्रायंगल की फॉर्म है तो उसका कहां पे लाई करेगा, तो ये बेटा लाई करेगा जो इसके मीडियन होंगे, इन मीडियन के इंटरसेक्शन के ऊपर लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। लेकिन जब कोण की बात आती है तो कोण का सेंटर मास कहां पे लाई करेगा, क्योंकि कोण बेटा एक यूनिफॉर्म शेप नहीं है, नीचे से इसकी शेप बड़ी है और ऊपर से छोटी है, तो इसका जो सेंटर मास कहां लाई करेगा, इट इज 3/4 ऑफ द हाइट ऑफ द कोण ऑफ द सिलेंडर। अगर वही बात है, अगर कोण की हाइट कितनी है, h है, तो इसका सेंटर मास कहां लाई करेगा, 3/4 ऑफ द h, की मीन्स इस हाइट के 3/4 पे क्या करेगा, वो लाई करेगा। तो अगर यहाँ पे 3/4 है तो यहाँ पे इसका सेंटर मास लाई करेगा। तो हमने सेंटर मास की पोजिशनिंग के बारे में डिस्कस किया है कि सेंटर मास ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट। अगर हम फिर से आपको एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं, किसी रिंग को हाफ कर दिया, ठीक है, किसी रिंग को अगर हमने हाफ कर दिया तो उसका सेंटर मास कहां लाई करेगा, तो उसका सेंटर मास लाई करेगा बेटा, उसका सेंटर मास लाई करेगा 0,2r/पाई। अब 0 मतलब जो x की वैल्यू वो 0 होगी, लेकिन जो y की वैल्यू वो 2r/पाई, मींस r उसकी रेडियस और डिवाइड बाय पाई, ठीक है। ये हाफ रिंग है, अगर रिंग क्या है बेटा आधी है। ऐसे ही अगर आपकी कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है, मतलब पूरी डिस्क का तो सेंटर पे लाई करेगा, लेकिन अगर कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है तो उसका भी कहां पे लाई करेगा, यही पॉइंट कोऑर्डिनेट उसके होंगे। ऐसे अगर आपका कोई क्या हेमीस्फीयर है, अगर स्फीयर का तो हमने बोल दिया सेंटर के ऊपर है, लेकिन अगर हेमीस्फीयर की हम बात करते हैं तो दो हेमीस्फीयर का जो सेंटर मास करेगा वो किस पे कोऑर्डिनेट करेगा, 0,3r/8। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब अगर हमने आपको बता ही दिया कि लेंथ का तो कहां पे होगा, उसके मिड पॉइंट में होगा, मतलब, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, कि अगर कोई शेप पूरी है, जैसे ये रोड है, ये रिंग है, ये डिस्क है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, ये ट्रायंगल है, अगर वो पूरी है तो वहीं पे लाई करेगा, कहां पे, जो उसका सेंटर होगा या ओरिजिन के ऊपर ही। लेकिन इफ द शेप इज हाफ, तो हाफ के लिए मैंने बता दिया, दोनों के लिए बेटा, ये रिंग के लिए भी है और दिस इज ऑल्सो फॉर डिस्क। डिस्क कौन सी, दैट इज सेमी। और ये किसके लिए है, ये आपका है सेमी या हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब आधे स्फीयर के लिए यहां पे लाई करेगा। तो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट यू हैव टू नो द रिजल्ट की वेयर द सेंटर ऑफ मास फॉर वेरी शेप हैव टू लाई। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हमने टॉर्क के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज टॉर्क। क्लियर। ये आपके काफी आगे यूज होगा। टॉर्क के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा रोटेशनल मोशन की हम बात करेंगे। तो दिस इज ओवर फॉर टुडे। वीडियो को पूरा देखो, देखने के बाद क्लियर एट द एंड अपना नेम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।